आई वॉज अ पर्सन जिसके लिए मेडिटेट करने के लिए बैठना, एक शांतिपूर्वक एक जगह पे संयम से बैठना वॉज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो अपने आप में सहज में आना आफ्टर गेटिंग द रेकी अट्यूनमेंट डन was a big achievement in itself. I make sure that before I step out of the house, घर से निकलने से पहले I apply divine symbols upon myself. I feel protected with the divine Reiki energy. देव से सीखी गई practices हैं जो उन्होंने टिप्स दिए हैं, जैसे इवन अपने रूम को चार्ज करने के लिए. I was having some kind of skin rashes. एंड पहले तो मैंने नजरअंदाज कर दिया कि मे बी इट्स द चेंज ऑफ वेदर. एंड देन इमीडिएटली आई थॉट ऑफ इंस्टेड ऑफ जस्ट अप्लाइंग रेकी सिंबल्स, व्हाई नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन द ऑरा कटिंग. सो थ्रू आउट माई स्किन, जो गुरुदेव से सिखाई गई मॉडलिटी थी, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. आई शुड रियली कंसल्ट अ डॉक्टर. So I went for an ultrasound, and finally you won't imagine that an orange size fibroid was detected by गुरुदेव जी. तो मुझे लगा कि मुझे अपना फुल ट्रस्ट रखना है गुरुदेव पे, क्योंकि गुरुदेव ने जो रेकी साइंस को मुझे सिखाया है, जैसे जैसे गुरुदेव ने सिखाया मैंने सारी उस मोडालिटी को अपनी बॉडी पे अप्लाई किया. एंड यू वोंट इमेजिन, जैसे रातों रात एक जादू हो गया. तो आई मीन आई वुड ऐड वन मोर एंगल मैम, कि हम जितना हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, इवन यंगस्टर्स आई शुड से, कि यूथ को भी गुरुदेव के साथ जुड़ना चाहिए. So I am Dr. Disha Khanna and I am from Jalandhar, and I've been staying in the city for the past 40 years. So how did you come to know about Reiki? How did you get into spirituality first? Exactly. So spirituality has been something in my roots. My grandmother, that's my Nani Ma. So she was too much into chanting, into doing her self healing, which initially I was not aware कि ये healing क्या होता है. And later on, I saw my mother getting into Reiki science. So to introduce me into Reiki healing is through my mother. And I being working with the university, so I am working as a counselor also. So I have many students who are attached with me. तो उनको मैं counseling sessions देती होती थी, but now with this addition of the Reiki science, so this is an addendum part to my personality, and that is how I was introduced to Reiki through my mother only. Yeah. So was it your first time doing Reiki from FOH, or you have done it before from any other foundations? Exactly, I'll not say from any other foundation, because I was introduced to Reiki, as I just told, by my mother. So my mother was Reiki attuned, and she once took me to the Reiki master. So no doubt I got the attunement done, but that was all very practical. But when I came to know about the Friends of Happiness, the FOH Center, and how Acharya Ji, Vipin Ji, he was taking up. So, getting attached with Gurudev through an online media, because while I was just surfing the Instagram to read more about Reiki and to get into this knowledge deeper, because theoretically I was not clear about the concepts, though I was Reiki tuned, but I was not clear. So while I was going through the social media channel, I finally found Gurudev talking about in one of the videos about the free Reiki session that he holds, which is known as Swabhas. So I finally found that yes, I'm at the right platform. तो मुझे मन किया अंदर से that yes, I should attend one of the courses with Gurudev. And finally, this is how I was introduced with Acharya Vipin Ji. Yeah. How was your attunement process during a whole workshop? Because every attunement is unique in itself. So how do you feel about that? The best part with Gurudev is that he's so much into his teaching. I mean, he gives his 100%. So sitting as a student in front of him itself is, something like a dream come true. Because इतनी महान हस्ती के सामने बैठना और उनके उपनिषद में बैठना as a साधक, तो मेरे लिए as a शिष्य बहुत बड़ी बात थी. And getting it tuned one after the another into different levels was all the more very magical. Because how Gurudev takes you into the attunement process, वो अपने आप में इतना खूबसूरत है that during the attunement journey you feel the magic happening in your body, and you feel that yes, the soul is somehow connected with Gurudev directly. And with my first experience of the attunement, I must say that it was truly, how should I put it into words? It was truly something very amazing, because you could feel those tantalating inside, the vibrations inside.
And by the end, the only thing one can really say is the tears. I mean, I should call that tears of gratitude. तो मेरा हर एक ही सेशन में गुरुदेव के साथ हर attunement level, I've got the attunement till 3 levels, and with every Reiki session, it was tears of gratitude. That is what I can say for him. Yeah. Reiki somehow changes one's life by their myths, by their spirituality, by doing grounding. I'm saying that myths जो वो तोड़े जाते हैं ना, उसके बाद एक person reborn होता है. That person becomes somebody else. So what was your experience about whole? I'm not talking about just Reiki, about spirituality, about Reiki, about other sources, about meditation. What changes your personality about that? Yeah, I feel that yes, my spiritual growth day by day is improving. I was a person जिसके लिए meditate करने के लिए बैठना, एक शांति पूर्वक एक जगह पे संयम से बैठना was a little bit difficult. So अपने आप में सहज में आना after getting the Reiki attunement done was a big achievement in itself. And slowly and steadily, I started taking time for myself. So before I could step forward for my day, I could crack my day and move ahead for my work. I made sure that yes, I have to do some pranayams like जैसे गुरुदेव रोज morning sessions लेते हैं अपने शिष्य के साथ. So I somehow found that yes, first putting yourself into some yoga asanas, and then somehow sitting for some sadhana, and then getting the meditation done, and then uske upar sone pe suhaga, I would say, is getting the Reiki done for yourself first, and then for your loved ones. So I made it a part of my routine. Now it has been like almost a year, I must say. So that what I'm doing is, so after learning Reiki from Gurudev, I made it sure that yes, I have to apply Reiki as an addition to my lifestyle. So after doing my meditation, I make sure कि गुरुदेव से सीखे गए Reiki divine symbols को मैं अपनी लाइफ में डेली उतारती हूँ. नहाने से पहले द बकेट जैसे गुरुदेव सिखाते हैं, right? Charging your bucket also, so you feel purified not only in your skin, but mental cleaning, mental aura cleaning तो हो ही रहा है. And secondly, I made sure that yes, whatever water bottle I'm carrying for my work, I'm carrying this. So I charge my water bottle with the divine Reiki symbols. So छोटे छोटे tips and tricks जो गुरुदेव बताते हैं throughout the Reiki levels and the sessions, I have made it a part of my daily routine. I make sure that before I step out of the house, घर से निकलने से पहले, I apply divine symbols upon myself. I feel, protected with the divine Reiki energy. सो अपना एक ऑरा, अपना आभा मंडल क्रिएट करके मैं घर से स्टेप आउट करती हूँ, चाहे वो एक छोटा मिशन हो, एक बड़ा मिशन हो. सो दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड थर्डली आई वुड लाइक टू एड ऑन इज, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, आप लोगों में विचलित होते हैं, तो ये देखा जाता है कि आपका ऑरा कहीं ना कहीं डगमगाता है, काम पे कोई ऐसी बात हो जाती है. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग माई सेल्फ ऑन अ लो वाइब्रेशंस, अपना आभा मंडल को इंक्रीज करने के लिए मैं टाइम टू टाइम आई मेक श्योर जो गुरुदेव से सीखी गई प्रैक्टिसेस हैं, जो उन्होंने टिप्स दिए हैं, जैसे इवन अपने रूम को चार्ज करने के लिए the lamp charging. So I make sure that I create that beautiful aura not only at my home but also at my workplace. तो अपने sitting zone पे, अपने workplace पे भी I do apply that. And जैसे आपने overall changes के बारे में बताया, तो the all the more beautiful change was when I started working for the people around me. So I started connecting with people who really need this Reiki change. So there are many examples what I can quote wherein I brought a change, rather a sea change in the life of the people who came to me for this Reiki science and Reiki healing. Yes. मैम आपने बहुत सारी हीलिंग करी है. आई नो वंडरफुल वंडरफुल हीलिंग्स की होंगी, खुद को भी अच्छा लगता है. एंड द पर्सन जिसको हम हील करते हैं वो तो ग्रैटिट्यूड फील करता ही है. प्लीज मैम हमें भी कुछ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कीजिए कि आपने कैसे किया और जो एक हीलिंग का प्रोसेस होता है वो आपके लिए कैसे रहता है. Yeah, I would love to share this because this is something so close to my heart. Though I have been a very healthy soul throughout my life, but recently, कुछ 5 महीने पहले, I don't know, I was having some kind of skin rashes.
एंड पहले तो मैंने नजरअंदाज कर दिया कि मे बी इट्स द चेंज ऑफ वेदर, बट स्लोली एंड स्टेडली इट स्टार्टेड हैपनिंग ऑल ओवर माय बॉडी एंड इट आई वाज इचिंग लाइक एनीथिंग. सो आप इमेजिन कर सकते हो, व्हेन यू आर एट योर वर्क एंड यू आर जस्ट ऑलवेज स्क्रैचिंग योर स्किन, इट डज नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन. सो समहाउ एकदम मुझे क्लिक किया कि गुरुदेव से सिखाई गई इस रेकी के टेक्निक्स को, वो सारी मोडालिटीज को वन बाय वन I started implementing. I even shared with Gurudev this beautiful experience and how this problem which I was going through 5 months. I took, the homeopathic medicine. I also went for different herbal techniques also, but somehow it was not working. And then immediately I thought of, instead of just applying Reiki symbols, why not start working on the aura cutting? So throughout my skin, जो गुरुदेव से सिखाई गई modality थी, I started working on that. I even charged my bucket with the highest divine symbol so that, it should cleanse my physical body. एंड आप मानोगे नहीं, एंड उन्हीं दौरान में एफओएच के द्वारा गुरुदेव ने एक थर्ड लेवल ऑफ रेकी सेशन लिया एंड उसमें आई लर्न दिस हाईएस्ट डिवाइन सिंबल. एंड द डे आई जस्ट अप्लाइड दैट, इट वाज जस्ट विद इन 2 days. जो 5 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी, वो विद इन 2 days वो मैजिकली हील हो गई. And you won't imagine that my skin all went so clear. There was nothing that I was now going through. There was no pain. And so, I mean, I was totally in gratitude that, Reiki can really work wonders. And so this was the experience number one. And very recently, there's another experience. Shall I share that also? Yes, ma'am. Please share however you want, how many Yeah. you want. Okay. So the second experience was truly divine, I must say. कि मतलब रेकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुली भी काम कर सकती है कि हम ये जानते नहीं हमारे अंदर सारी एनर्जी है. और हम कई बार ऐसे एक बेगिंग बोल की तरह हम इधर उधर पूछते रहते हैं डॉक्टर्स के पास. तो मुझे लगता है ये रेकी जो एक साइंटिफिक टेक्निक है, अगर जन जन इसको सीख जाए तो मुझे लगता है सबके घर में सुधार हो सकता है. तो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस ऑल द मोर मैजिकल था. So I was going through, complete 1 month through my menstrual changes, as any women of this age would have it. And as I just shared, that I was really very healthy. I never had any kind of medicines. So again, I did not thought of, consulting a doctor. But somehow on my 25th day, I thought of that I am feeling weak in my body and I should really consult a doctor. So I went for an ultrasound, and finally, you won't imagine that an orange size fibroid was detected. So this was really, heart touching to me कि ऐसे कैसे हो सकता है. But then finally, I was asked to get an MRI done. एमआरआई का एक्सपीरियंस अगर कोई समझ सकता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फोबिया होता है. बिकॉज एक पूरी मशीन में आपको 35-40 मिनट के लिए अंदर डाल दिया जाता है एंड वो इतनी सारी साउंड्स के साथ आपको हिट किया जाता है. तो जिसने भी एमआरआई एक्सपीरियंस कराया होगा वो मेरी इस बात से कोरिलेट कर पाएंगे. तो मैंने बस गुरुदेव के आगे समर्पण कर दिया उस मशीन के अंदर. जैसे मैं गई, आई जस्ट कॉल गुरुदेव विद अ डिवाइन कॉलिंग दैट यू हैव टू बी विद मी एंड आपको ही देखना है. पहले भी आपने देखा है और इस बार भी आप ही देखेंगे. एंड यू वोंट इमेजिन, उस मशीन के दौरान आई वाज जस्ट चैंटिंग द डिवाइन मंत्रस. ओम नमः शिवाय वाज द चैंट व्हिच आई डिड थ्रू आउट. एंड नेक्स्ट डे आई वाज बैक टू माय वर्क एंड मुझे रेडियोलॉजिस्ट का कॉल आता है कि दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग जिसको हम देख पा रहे हैं. आपका अल्ट्रासाउंड कुछ कह रहा है एंड एमआरआई रिपोर्ट्स कुछ और कह रही है. एंड इन बिटवीन दिस, नो, बिकॉज आई वॉज अटैच टू आचार्य गुरुदेव जी, तो मुझे लगा कि मुझे अपना फुल ट्रस्ट रखना है गुरुदेव पे, क्योंकि गुरुदेव ने जो रेकी साइंस को मुझे सिखाया है उसको मुझे रोज अपना पार्ट तो बनाना ही है. तो आई जस्ट डिड दी वन ऑफ दी टेक्निक्स जो गुरुदेव ने सिखाई थी, दैट वाज ऑरा कटिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग. तो जैसे जैसे गुरुदेव ने सिखाया, मैंने सारी उस मोडालिटी को अपनी बॉडी पे अप्लाई किया. एंड यू वोंट इमेजिन, जैसे रातों रात एक जादू हो गया. तो नेक्स्ट डे मुझे मेरे काम से रेडियोलॉजिस्ट का कॉल आता दैट यू हैव टू बी अगेन हियर फॉर अ सेकंड अल्ट्रासाउंड. एंड आई सिंपली अगेन, आई डोंट नो, जैसे ही मैं ऑफिस से निकली, आई हैड दिस ट्रस्ट इन माई माइंड कि गुरुदेव हैं तो कुछ ना कुछ तो मैजिक होएगा. रेकी हैज टू डू मैजिक. सो आई वॉज सो कंप्लीट विद इन एंड आई वॉज सो इन अ सरेंडर्ड भाव में मैं गई.
एंड यू वोंट इमेजिन दैट वो जो 8 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड जो डिटेक्ट हुआ वो सेकंड अल्ट्रासाउंड पे दैट वाज नॉट इवन एग्जिस्टिंग। जस्ट मेरे एक दिन की ऑरा कटिंग के साथ यू जस्ट हैव टू बिलीव दिस दैट दिस मैजिक हैपेंड। एंड अगेन मेरा शुक्राना है गुरुदेव को कि गुरुदेव इतना कुछ है उनके पास सीखने के लिए कि जो भी शिष्य उनके साथ जुड़े उनको गुरुदेव से सीखी गई इस नॉलेज को अपने ऊपर और अपने साथ जुड़े हुए अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, जिन जिन को इसकी जरूरत है वो इसको जरूर सिखाएं। So this is my second experience, and I believe that I have so much trust in Gurudev's Reiki science, that I use it truly as a divine tool with me every day. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. That was brilliant experience, and how you put it, it was very nice to hear, and very blessed to have Guruji, the same Guruji you have. Ma'am, you said it is scientific. It is a scientific approach, and it is followed throughout. Like that is of science only. Does it relate to the religion? आई गेस पता नहीं, मैं इसको इस तरह से पुट अप करना चाहूंगी कि अगर हम अपनी छोटी बुद्धि लगाएं तो हम हर चीज में रिलीजन को ना डालें, बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल साइंटिफिक टेक्निक है। इट हैज गॉट लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, एंड मुझे लगता है कि जो एक बार रेकी साइंस के साथ जुड़ जाता है वो इसकी टेक्निक को किस तरह से वर्क करती है, कौन सी मोडालिटीज हैं, किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। And science itself is experimentation. तो आई वुड कॉल इट एज एन हिट एंड ट्रायल, और नीदर मैं इसको रिलीजन के साथ कहीं पे भी जोड़ना चाहूंगी। आप चाहे सिख कम्युनिटी से बिलीव करें, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करें, रेकी अपने आप में कंप्लीट साइंस है। इसको रिलीजन के साथ जोड़ना, आई गेस दैट वुड नॉट बी ट्रू एंड रियलिस्टिक। एंड मुझे लगता है हम सब लोग जो सब शिष्य गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो फेलो पार्टनर्स होते थे, हमारे फेलो पार्टिसिपेंट्स, वो अलग अलग रिलीजन से बैठे हुए हैं। आई कुड सी a Jaini sitting in Gurudev's Reiki session, and we all learned it so beautifully, keeping aside our religion and keeping following the steps and the scientific techniques of Gurudev. तो मैं इन दोनों चीजों को इकट्ठे नहीं जोड़ना चाहूंगी, और इसको साइड पे रखते हुए इसको प्योरली एक स्पिरिचुअल साइंस और स्पिरिचुअल टेक्निक मानूंगी जी। Yes, ma'am, beautifully put. Because half of the people ये सोचते हैं that it is related to religion, because हम spirituality इसमें add कर देते हैं. Yeah. But आपकी हर अप्रोच में ये कहा गया कि ये साइंटिफिक टेक्निक है. सो इट वाज रियली वेल पुट, बिकॉज ये सिर्फ टेक्निक्स हैं जिसे हम फॉलो करते हैं. हम किसी को भी याद करें बट वो अप्लाई होती है टेक्निक, और रिजल्ट्स देती है मैम. जैसे आपने कहा रिजल्ट्स देती है हर किसी चीज में. एक चेंज हो जाती है लाइफ, क्योंकि हम एक जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो हमेशा थोड़ा मीडियम वाइब्रेशंस में रहते हैं, बट रेकी सीखने के बाद हम हाई वाइब्रेशंस में पहुंच जाते हैं. उसके एक्सपीरियंस मैम एक हाई वाइब्रेशन में जो इंसान है वही बता पाएंगे. सो आपका क्या लगता है कि जो रेकी सीख चुके होते हैं और जो रेकी नहीं सीखे होते, जो अवेयर नहीं होते, ऑफ कोर्स दे वांट टू बट अवेयर नहीं होते, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे और किस तरह से बोलना चाहेंगे कि रेकी की अवेयरनेस हमें क्यों जरूरी है आज की मॉडर्न लाइफ में, खासकर आई थिंक बिकॉज इतना प्रेशर हो चुका है आज की लाइफ में कि रेकी आई थिंक जैसे आपने अपनी लाइफ में एक तरह से जोड़ दी है, स्यू कर ली है, वो मैं चाहती हूँ कि सामने और भी लोग सुने इस चीज को और वो भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, प्लीज. हाँ जी, मैं कहूंगी कि गुरुदेव इतना अच्छा सिखा रहे हैं, एंड मुझे नहीं लगता उनके जैसा कोई आचार्य हो सकता है जो आपके सामने बैठ के अपना 100% इवन ऑनलाइन मोड में भी दे रहे हैं। तो उनके सानिध्य में बैठना अपने आप में पहले एक ब्लेसिंग है, पहले तो मैं ये कहूंगी। एंड सेकेंडली, जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुली बोला कि मैंने रेकी को एक्चुअली अपना पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बना लिया है। जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो मुझे लगता है घर से निकलने से पहले
अपने आप को ब्यूटीफुली अपना आउटसाइड ऑरा को डेवलप करने से पहले मुझे लगता है अगर हम अपनी मेंटल क्लीनिंग, मेंटल ऑरा को और हायर और पॉजिटिव रेकी के साथ बना पाएं, तो आई गेस नथिंग लाइक दैट। एंड आई बिलीव, जैसे आपने बहुत प्यारा एक क्वेश्चन पुट किया और आपने ये वर्ड्स रखे कि आजकल के इस मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में, आई मीन आई वुड ऐड वन मोर एंगल मैम, कि हम जितना हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, इवन यंगस्टर्स आई शुड से, कि यूथ को भी गुरुदेव के साथ जुड़ना चाहिए। एंड मुझे लगता है जो जो गुरुदेव के मीडियम बने हैं उन सबको, चाहे उनके घर के फैमिली मेंबर्स हों, यंग बच्चे हों, या इवन कोई एजेड घर के सीनियर मेंबर्स हों, सब तक रेकी जो है, ये रेकी साइंस जानी चाहिए। बट स्पेशली मैं यूथ के लिए ये प्यारा एंगल पुट अप करना चाहूंगी कि यूथ को डेफिनेटली अपने आप को हाई ऑरा में रखने के लिए, बिकॉज दे हैव गॉट लॉट ऑफ प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, they have relationship issues, and in order to cope up with everything, अगर हम इस रेकी साइंस को अपनी लाइफ में ऐड कर लें, आई गेस नथिंग कैन रियली बीट अस, एंड विल बी अपने अपने कंपटीशन से हटकर हम किसी भी फील्ड में अगर आगे जाएं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हम एक इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, इवन डॉक्टर्स दीज डेज बिफोर दे डू सम काइंड ऑफ सर्जरी, they have also learned this Reiki science. Even they pray with folded hands and they invite Reiki energy. So I guess everyone is getting adjusted and know about this Reiki science. And I really feel that yes, this Reiki knowledge should be a part, an assured part of everyone's life. एंड इसके लिए कहीं पे भी गुरुदेव को लगे कि यस, उनके शिष्य इस चीज का मीडियम बन सकते हैं, तो आई गेस आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प स्टूडेंट्स। एंड बिकॉज आई मेड इट अ रूटीन, आई मेड श्योर मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड दैट आई एम इनटू अ प्रोफेशन विच इन्वॉल्व्स टीचिंग, विच इन्वॉल्व्स काउंसलिंग, विच इन्वॉल्व्स ऑनलाइन सेशंस, सो आई मेक श्योर कि मैं इस रेकी एनर्जी को, रेकी हीलिंग को कहीं ना कहीं इसके साथ जरूर जोड़ती हूँ, ताकि वो बच्चों की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज ला सके। बिकॉज मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, एंड आई रियली फील दिस ट्रांजिशन शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ एवरी वन विद हुम आई एम कनेक्टिंग। एंड आपने एक और बात बहुत प्यारी सी ऐड की थी कि हमारी वाइब्रेशंस कई बार लो हो जाती हैं, बट मुझे लगता है जिसने एक बार रेकी साइंस को सीख लिया, उसके लिए तो चुटकियों में अपनी वाइब्रेशंस, अपने ऑरा, अपने आभा मंडल को हाई रखना, प्योर रखना, एंड अपने थिंकिंग को, अपने एक्शंस को थ्रू रेकी साइंस अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करें, तो ये लाइफ का बहुत प्यारा अंग है। आई मीन ये इतना उच्च और इतना प्योर साइंस है कि इसको अगर हम सीख लेते हैं एंड इसको एक डिवाइन टच के साथ अटैच करके अगर हम आगे चलते हैं, तो वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। तो सक्सेस मुझे लगता है ऑटोमेटिकली और अबंडेंस ऑटोमेटिकली आपको टच करती है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। Thank you, ma'am. Last question, but डाइट मैम, डाइट गुरुजी हमेशा इस चीज को फोकस करते हैं कि वो बता सके कि आपकी डाइट चेंज करना या फिर एक हेल्दी डाइट रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है। डाइट में मैम हमेशा वाइब्रेशंस होती हैं, जिसमें आजकल तो हर तरह की है, सैलेड्स तो, वैसे स्प्राउट्स तो देख लीजिए, नॉर्मल हेल्दी फूड तो देख लीजिए, प्लस घर का खाना, सब लोग अटैच्ड होते हैं। लेकिन उस वाइब्रेशंस को आपने किस तरह से समझा है, आपने किस तरह से उसको अडेप्ट किया है अपने लाइफ में, क्या चेंजेस किए हैं आपने डाइट पे? सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एंड मुझे लगता है कि हम कई बार अनजान ही रह जाते हैं कि हम किस तरह का पानी पी रहे हैं, किस से पानी पी रहे हैं। और मुझे लगता है जब हम रेकी साइंस में आ जाते हैं ना, तो हमारे हाथों में इतना जादू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर, राइट, तो मैं इसको अगर चार्ज करके पीती हूँ और इसकी वाइब्रेशंस ने मेरी बॉडी को हील किया है, तो स्लोली एंड स्टेडली व्हेन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद रेकी, आई रियलाइज्ड इवन जो मेरा खान पान है वो मेरे मेंटल लेवल को बहुत इफेक्ट करता है। तो जब मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो आई टोटली चेंज्ड माई ईटिंग हैबिट, माई ईटिंग स्टाइल्स, बिकॉज गुरुदेव के रेकी सेशंस में ये बताया जाता है। गुरुदेव खुद खाने के ऊपर बहुत स्ट्रेस करते हैं और समझाते हैं अपने सारे साधक्स को कि अपने लाइफस्टाइल में डाइट को चेंज लेकर आना बहुत अहमियत है। So finally, I would just like to say that I shifted myself purely into sattvic eating.
आई हैव मेड श्योर कि मैं घर का शुद्ध बना खाना ही खाऊं जिसकी वाइब्रेशंस बहुत हायर हो, बट उसको बनाने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी खुद का सत्वा रेज्ड हो, एंड दैट आई अगेन डू थ्रू योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एंड फाइनली आई टॉप इट अप विद रेकी रेकी एनर्जी जो गुरुदेव के द्वारा सीखी गई है। एंड जब मैं अपने आप को एक हायर आभा मंडल में ले आती हूँ, तब मैं अपना खाने को बनाने के लिए किचन में अपना कदम रखती हूँ। एंड जो भी मैं खाना बनाती हूँ, आई मेक श्योर दैट आई अप्लाई दोज डिवाइन सिंबल्स, ताकि एक तो खाना शुद्ध हो गया, उसकी वाइब्रेशंस जिसने बनाया उसका आभा मंडल बहुत प्योर और हाई है, एंड उसको ग्रहण करने से पहले भी जब गुरुदेव ने टेक्निक सिखा दिया और अगर हम उसको इस्तेमाल ना करें तो मुझे लगता है वो हमारे अंदर का ही लैक होगा। सो आई मेक श्योर मैं अपना वाटर चार्ज करती हूँ, अपने फूड को हायर वाइब्रेशंस के साथ बनाती हूँ एंड देन खाती हूँ, एंड उसके साथ साथ आई मेक श्योर कभी जैसे हम चीट मील्स आजकल का बहुत लेटेस्ट ट्रेंड है, तो आई मेक श्योर दैट अगर मेरी वो चीट मील है भी तो वो भी सात्विक हो। नॉनवेज को मैं अभी इतना हाईलाइट नहीं करूंगी, बट यस जब हम जान जाते हैं कि हर एक में ऊर्जा है, हर एक में प्राण है, तो हम ये बहुत कॉन्शियस ईटिंग करें। अगर हम अपनी कॉन्शियस लिविंग कर रहे हैं तो हमारी ईटिंग भी कॉन्शियस ईटिंग होनी चाहिए। तो यस आई हैव बॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन माय ईटिंग हैबिट्स। एक इंसान जिसको खाना बहुत पसंद था, उसने अपने अंदर ये सी चेंज लेकर आई हूँ, एंड यस आई मेक श्योर मेरी हर चीज जो है रेकी के साथ कनेक्टेड हो, बिकॉज जैसे मैंने बताया रेकी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, तो माई फूड इज ऑल्सो सात्विक नाउ, एंड आई कंसिडर इट मोर लाइक अ प्रसाद rather than just food। जितना खाना है, जितना ज़रूरत है, और जितना भी आप अपने अपने आप को उस फूड के साथ कंज्यूम कर रहे हो, इट शुड इंक्रीज माई एनर्जी, शुड इंक्रीज माई सत्वा, ये सोचते हुए मैं अपने खाने को ग्रहण करती हूँ। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। लास्ट बिट आप कुछ कहना चाहेंगे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जो ये वीडियो देखे उसको कहना चाहें कि रेकी उन्हें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, लास्ट बिट। या एक बहुत प्यारा गुरुदेव हमारे फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस का ही बहुत प्यारा कोट है गुरुदेव द्वारा, कि FOH इज द होप ऑफ द होपलेस। तो मुझे लगता है कई बार गुरुदेव के साथ वो लोग जुड़ते हैं जिनको लगता है उनकी लाइफ में कोई ट्रबल है, उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है जब मैंने गुरुदेव के साथ जुड़ी, तो मेरे को ये लग रहा था कि मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत अबंडेंस है, बट आई रियली वांटेड टू टेल ईच वन ऑफ यू कि ये मत सोचो कि लाइफ में कुछ गोलमाल चल रहा है तो हमें FOH में आना है। राइट, नो डाउट गुरुदेव तो कहते हैं कि मेरे पास तब लोग आते हैं जब उनका लास्ट रे ऑफ होप लगता है, तो उनको लगता है हम एक्सपेरिमेंट कर ले। पर मुझे लगता है ये गलत है, कि गुरुदेव के पास तो हमें पहुंच ही जाना चाहिए, कि सोचो मत व्हाट इज योर एज, despite whatever age you are into, just get into the Reiki knowledge, Reiki science as immediate as you can, because गुरुदेव द्वारा सिखाई गई टेक्निक्स आपकी लाइफ में मैजिक ला देंगी। तो अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो मैं बस एक लास्ट आपके आगे प्रार्थना करूं या निवेदन करूं, प्लीज अपने आप को रेकी साइंस के साथ जोड़ें, स्पेशली FOH के साथ जोड़ें, बिकॉज रेकी एनर्जी तो जगह जगह रेकी साइंस को सिखाने वाले बहुत सारे मीडियम हैं। बट अगर आप रियली चाहते हो कि आप किसी रियल आचार्य जी, एक ट्रूथ टीचर के साथ जुड़ें, तो आई गेस आचार्य गुरुदेव विपिन जी इज द राइट सोर्स। तो फिर से मैं वही कहना चाहूंगी, FOH टीचेस यू द रियल डेफिनेशन ऑफ लाइफ। अगर आप चाहते हो योर लाइफ शुड बी मैजिकल, हैप्पी, और इस आर्ट ऑफ लिविंग को अगर आप जीना चाहते हो, तो गुरुदेव का FOH सेंटर इज द बेस्ट प्लेस दैट यू कैन बी। सो ज्वाइन इमिडिएटली, बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, वी वुड लव टू हेयर योर एक्सपीरियंसेस वेरी सून। I'm thankful for this beautiful interview, and thank you for giving me this opportunity of being a part of this beautiful session. Jai Gurudev.